Hello 7th class. Look at this picture. This is an earth. Students, our earth includes land, water, air, plants, animals, and us. Our earth is made up of living and non-living things. As you are aware, most living things need air to breathe. Air is all around us, even in the room or outside where you are sitting, but it cannot be seen, felt, tasted, or smelled. We cannot see the air, but we can feel it. So my question is there, student, what is air exactly? What is air? It is a mixture of many gases. Air is a mixture of many gases. All living things breathe in and breathe out the air. Student, this is our earth and और आपको हमारी अर्थ के चारों तरफ क्या दिखाई दे रहा है? What do you see? This is a layer, student. और ये लेयर क्या लेयर है और ये किससे बनी हुई है? As you know, हमारी अर्थ है जो वो एक लेयर में लिपटी हुई है चारों तरफ से, और इसको ब्लैंकेट बोलेंगे, ब्लैंकेट ऑफ एयर. इट मीन्स ये एक हवा की परत है, ये एयर की परत है चारों तरफ, एंड दैट इज नोन एज ब्लैंकेट ऑफ एयर. ओके स्टूडेंट, व्हाट इज द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट सराउंड द अर्थ? अब जो ये चारों तरफ जो ब्लैंकेट है एयर की, इसको क्या बोलेंगे? What is this? This is atmosphere. Got it? Students, the blanket of air surround the earth is called atmosphere. And as you know, the earth atmosphere supports life. ये okay, the atmosphere not only contain the air, okay, that we breathe in, but also protect us from the heat and harmful radiation from the sun, and it keeps the temperature of the earth optimum. Is that clear? It means जो ये हवा की परत है, जो ये एटमॉस्फेयर है, ये हमें सिर्फ हम इसको अपने सांस लेने में ही यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि ये सन से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से भी हमें बचाता है और हमारी अर्थ के टेम्परेचर को भी अच्छा रखता है. इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड आवर चैप्टर द एटमॉस्फेयर. ओके, so let's start the chapter. This one is our next chapter, the atmosphere. These students, this is our chapter 4, the atmosphere. Okay, and these are the given some learning objectives that we will read in this chapter, and this is the part 1 video of this chapter. Okay, and this is the part 1 video of this chapter. Okay, and this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video of this chapter. And this is the part 1 video
In the part second video of this chapter, we will read the remaining topics and exercises. Okay, so here is a given the some learning objectives. The first one, importance of atmosphere. The second one, composition of atmosphere. And the third one, structure of atmosphere. Okay, so now let's start the chapter. Students, this is our earth. Okay, and our earth is surrounded by चारों तरफ क्या है हमारी अर्थ के, एयर. ओके, सराउंडेड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ एयर. ये एक हवा की परत है, चादर है हवा की, और ये ब्लैंकेट ऑफ एयर है. एंड दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, और इसी को क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेयर. ओके, एंड स्टूडेंट, एटमॉस्फेयर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर. Got it? And student, the atmosphere derived from the Greek words. कहाँ से लिया गया है ये, ग्रीक वर्ड से लिया गया है. ओके, एंड ग्रीक वर्ड है वो एटम्स. ओके, एंड एटम मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, मीनिंग वेपर. Atoms meaning vapor, or one another thing also, spira. Okay, and spira meaning sphere. Got it? Sphere. Okay, and atmosphere extends up to a height of 1600 kilometer above the sea level. Okay, कहाँ से तक फैला हुआ है ये, हमारे सी लेवल से 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है. इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, यू नो वेरी वेल द एटमोसफियर क्या करता है, लाइफ सपोर्टिंग. ओके, ये हवा है तो हम लोग क्या है, सांस ले रहे हैं. ओके, और दिस वन इज ऑल्सो द अवर नेक्स्ट टॉपिक, द इम्पोर्टेंस ऑफ द एटमोसफियर. इट कंटेन्स व्हाट, इट कंटेन्स life supporting gases. Okay, such as oxygen, nitrogen and carbon dioxide, which makes the existence of life possible on earth and make it a unique planet. Okay, and second one, it prevents the harmful ultraviolet rays of the sun from reaching us. It means ये क्या करता है, जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है, it means this is our earth, and यहाँ पर जैसे हमारा सन है, ये एटमॉस्फेयर है, तो जितने भी सन से अल्ट्रावायलेट रेज हमारी अर्थ की तरफ आती हैं तो वो क्या होती हैं, बैक हो जाती हैं. ओके, it means it prevents the harmful ultraviolet rays of the sun from reaching us. Is that clear? It acts as a blanket by trapping the solar radiation and keeping the earth warm. Okay, student,
विदाउट दिस प्रोटेक्टिव लेयर, अगर ये लेयर ना हो तो क्या होगा? द हीट ऑफ द सन वुड बिकम अनबियरेबल ड्यूरिंग द डे, जो सूरज से आने वाली गर्मी है वो बिल्कुल सहन नहीं होगी। एंड नाइट वुड हैव बीन फ्रीजिंग कोल्ड, और जो रातें हैं वो बिल्कुल ठंडी हो जाएंगी। ओके, सो ये इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कौन? द ब्लैंकेट ऑफ एयर, एंड इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। गॉट इट? द एयर दैट वी ब्रीथ is the mixture of many gases. Nitrogen and oxygen are the main constituent gases of the atmosphere. Okay? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये बहुत ही मेन कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस हैं हमारी एटमॉस्फेयर के लिए। अदर कंपोनेंट्स ऑफ द एटमॉस्फेयर इंक्लूड, और उनमें कौन कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, ओजोन, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। ओके, एंड सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स। दिस इज अ पाई चार्ट स्टूडेंट, जिनसे हमें पता चलेगा कि किस गैस का कितना परसेंटेज है हमारी एटमॉस्फेयर में। ओके, और ये बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को पता चल रहा है, आप इसको ध्यान से देखें। एज द पाई चार्ट सजेस्ट्स, द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 78% नाइट्रोजन, 78, 21% ऑक्सीजन and about 1% other gases include carbon dioxide, argon, helium, ozone, hydrogen and water vapor. Okay, students, nitrogen gas is very essential for all living organism. Okay, और सभी ऑर्गेनिज्म के लिए ये ही बहुत ही एसेंशियल है। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन टू सर्वाइव, बट दे कैन नॉट डायरेक्टली ब्रीथ इट इन। ओके, नाइट्रोजन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन क्या हम लोग उसको सांस के द्वारा हम उसको यूज़ नहीं करते? ओके, प्लांट्स गेट नाइट्रोजन from the bacteria present in the soil or root nodules. Okay, students, plants get nitrogen from the bacteria present in the soil and or root nodules. It means जो नाइट्रोजन है वो प्लांट्स कैसे लेते हैं? जो कि सॉयल में बैक्टीरिया होते हैं। ओके, वहाँ से प्लांट्स क्या करते हैं? नाइट्रोजन को ले पाते हैं। और स्टूडेंट, द सेकंड गैस ऑक्सीजन, वो दैट इज़ ऑल्सो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस। ऑक्सीजन इज़ द गैस वी ब्रीथ इन। हम कौन सी गैस यूज़ करते हैं फॉर ब्रीथिंग? ऑक्सीजन, एंड इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर। विदाउट ऑक्सीजन all life on the earth would perish. ओके, अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी क्या हम लोग रह पाएंगे? नहीं। एंड स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है? यू नो वेरी वेल, इट हेल्प्स प्लांट टू प्रोड्यूस देयर फूड इन सनलाइट। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड से ही क्या होती है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है वो पूरी होती है। उसमें क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब द हीट सेंट टू द अर्थ बाय द सन। और एक ये क्या काम करती है? ये हमारी सूरज से आने वाली जितनी भी सूरज से आने वाली, सन से आने वाली जितनी भी हीट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। और उसके कारण क्या होता है? हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर होता है वो गर्म हो जाता है।
Okay, carbon dioxide absorb the heat sun to the earth by the sun, and this helps to insulate the earth and keeps it warm enough for life to exist. Okay, and student, ओजोन गैस, जो ओजोन गैस है वो इज़ मेनली फाउंड इन द ओजोन लेयर, और ये एक ओजोन लेयर के बीच में पाई जाती है, एंड अप्रॉक्सीमेटली 9 miles अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, अर्थ के 9 miles ऊपर तक ओजोन गैस मिलती है, और ये क्या करती है, हमें सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज से बचाती है. ओके, ये क्या एब्जॉर्ब करती है, ओजोन गैस एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ द सन and protect the plants and animals from getting too much of the ultraviolet rays which can be harmful to life. Okay, student, this is the oxygen cycles. और इसमें क्या होता है, plants creates oxygen with photosynthesis and release it. Humans and plants breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. फिर दोबारा से प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, और ये चक्र ऐसे चलता रहता है. एंड द वाटर वेपर, अब ये वाटर वेपर क्या है, द क्लाउड इन द स्काई आर मेड अप ऑफ वाटर वेपर, एंड इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर दैट कॉजेज रेन एंड स्नो. ओके, सूरज की गर्मी क्या होती है, पानी पर पड़ती है, और पानी क्या होता है, वेपर बन के उड़ता है, और जिससे क्या बनते हैं, बादल बनते हैं. ओके, और फिर ये इट इज़ द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर दैट कॉजेज रेन एंड स्नो. वाटर वेपर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर पर भी काफ़ी अफेक्ट करता है. ओके, हाउ, the weather of a place is determined by the condition of atmosphere such as temperature, humidity, sunshine and wind pressure. Okay, students, do you know, क्या आप जानते हैं, each time we breathe out our body release a small amount of carbon dioxide. हमारी बॉडी क्या करती है, क्या रिलीज़ करेगी, सॉरी, जब हम ब्रीथ करते हैं तो कौन सी गैस है जो रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ना. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज़ कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस. कार्बन डाइऑक्साइड को एक ग्रीन हाउस गैस भी बोला जाता है. व्हेन इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर इट ट्रैप्स द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ. और ये जब रिलीज़ होती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ये अपने अंदर किस चीज़ को ट्रैप कर लेती है, किसको पकड़ लेती है, हीट को, गर्मी को, जो कि सन से आती है जो हीट, उसको ट्रैप कर लेती है. ओके, एंड क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बनता है. विदाउट इट, बिना इसके क्या होगा, द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन. बहुत ठंडी हो जाएगी. ओके, हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है जिसमें हम अच्छे से रह पा रहे हैं और हमारे लिए जो सुटेबल है, वो कौन सी गैस के कारण हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण. ओके, और इससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बनता है और हमारी अर्थ का टेम्परेचर हमारे रहने के लायक बनता है. लेकिन स्टूडेंट, एक बात और भी है. However, human beings add a significant amount of carbon dioxide in the atmosphere artificially when the level of carbon dioxide in the atmosphere increases due to factory smoke, car fumes, or by burning of fossil fuels. It means कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ता जा रहा है, और वो कैसे, ह्यूमन एक्टिविटी से. और वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं, फैक्ट्री स्मोक, फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, कार फ्यूम्स, ओके, जो हम व्हीकल चलाते हैं उससे भी निकलने वाला धुआं, बाय बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. ओके, आपको पता है कि जो व्हीकल, जितने भी व्हीकल वो कैसे चलते हैं, उनमें फॉसिल फ्यूल्स यूज़ होता है, सच एज पेट्रोल, डीजल. ओके, और उनसे क्या होता है, बहुत सारा धुआं निकलता है. इट
the heat it retain increase the temperature of the earth. This is called global warming. और इससे क्या होता है, हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर है बहुत ही बढ़ता चला जाता है और इसी को बोला गया ग्लोबल वार्मिंग. इज दैट क्लियर? इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बिकम टू हाई, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो क्या होगा? इट इज़ फियर्ड दैट द अर्थ टेम्परेचर विल राइज एंड मे मेल्ट द स्नो इन द कोल्ड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. और क्या होगा, जितनी भी स्नो है कोल्ड रीजन में, आपको पता है ना, आर्कटिक, अंटार्कटिका, दीज आर द पोलर रीजन, और जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, वो क्या होगी, धीरे धीरे वो मेल्ट होना, पिघलना शुरू हो जाएगी. एंड व्हेन द स्नो मेल्ट, और जब ये पिघल गई, द सी लेवल विल राइज, सी का लेवल हो काफ़ी बढ़ जाएगा. एंड इट कैन एंड कॉज फ्लड्स इन द कोस्टल एरियाज. और क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी ही पानी हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी. ओके स्टूडेंट, दिस डायग्राम शोज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. इसमें बिल्कुल साफ और अच्छे तरीके से हमें जो है लेयर का पता चल रहा है एटमॉस्फेयर की. ओके, it means atmosphere is a thick layer of air that surrounds the earth and it is a mixture of gases. Okay, and I already told you these gases include nitrogen 78%, oxygen 21%, and carbon dioxide 0.6%, and other some gases. Okay, and this diagram shows the atmosphere layer, and the atmosphere extends to about 1600 किलोमीटर above the sea level. सी लेवल से ये बिल्कुल 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर. और इसकी कितनी लेयर हो गई, 5. ये 5 लेयर यहाँ पे दिखाई दे रही हैं. दिस डायग्राम शोज द 5 लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर. द फर्स्ट वन इज ट्रोपोस्फेयर, और इसी को क्या बोला गया है, लाइफ फॉर्म्स वेदर, यहीं पर पता चलता है. सेकेंड वन इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड वन इज मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर. ओके, नाउ अभी तक हम सिर्फ इतना ही अपने चैप्टर को कवर करेंगे. इन द नेक्स्ट वीडियो हम हम इन लेयर को बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में समझेंगे. ओके, स्टिल देन कीप रीडिंग.